Good morning, students. Welcome to SST class of class 6. We have started our first chapter, an introduction to history. So, what we will study in history and why should we study about the history we have already discussed. Today we will start what is history. What is history? So, you can define the history with the definition of a history is a record of people, place and events of the past which is arranged in a chronological format is known as history. That means the whatever happened in the past we study in history, and that is a history. So you can define the history once again. I repeat, the history is the record of people, record of events, record of places of the past arranged in a chronological order is known as history. Clear? Just note it down once again. I repeat, history is a record of people, places, events of the past arranged in chronological order which is known as history. Clear? In this history we study about the past of people's lifestyle, occupation, lifestyle means the what kind of habits and the lifestyle they have. The what would be the day to day, you can say day to day what they did on the daily basis, which is known as the lifestyle. Occupation, what they do actually for their bread and butter, means हिंदी में आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, पेशा, कि वो क्या करते थे अपने ब्रेड एंड बटर, अपने रोजी रोटी के लिए या फिर अपने पेट भरने के लिए वो क्या काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था. नेक्स्ट है आपका कॉस्ट्यूम. You know what is costume? The what kind of clothes you can, what kind of clothes they used to wear that time. Second, next one is the language and culture, you can say. What kind of language they used in the past and what kind of culture they have on that time. Religion or religious belief, religious belief means the what kind of religion they believe in that. And the next one is the social and political life and the social and political system. Nowadays, if we say the what kind of political system we have, we know that about the democracy and all that. So in the past time, what kind of political system the peoples follow and what kind of society they have and what kind of social in this they used to live in. These points we cover in the history. किसी के इतिहास के बारे में हम क्या पढ़ते हैं,
उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, उनके पेशा के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके का कपड़े पहनते थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, उनका कल्चर क्या था, किस तरीके के रिलीजन में वो बिलीव करते थे, उनका मतलब धार्मिक व्यवहार कैसा था, किस तरह के धर्म में वो विश्वास रखते थे, उनका सोशल और पॉलिटिकल लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरीके के समाज में रहते थे या किस तरीके से अपने वो समाज को अरेंज करते थे। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ये हो गया हमारा व्हाट इज हिस्ट्री। इन दिस पॉइंट वी कवर व्हाट पॉइंट शुड बी स्टडी इन हिस्ट्री अबाउट द पास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। Importance of history. Why is it important? So to know our past. To know our past, we need to study the history. हमें अपने पूर्वज के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है, इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा हमारा, टू नो आवर पास्ट। सेकेंड वन इज द ह्यूमन, टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर, एंड सिविलाइजेशन। ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन मीन्स, अभी प्रीवियस पॉइंट्स में ही हमने देखा है कि ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल स्टडी करते हैं, हम लैंग्वेज स्टडी करते हैं, कल्चर स्टडी करते हैं। ये क्या है हमारा, सिविलाइजेशन है और ह्यूमन कल्चर। क्लियर? तो इन सबको जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। टू लीड a better life, lead a better life. We can say we learn the pattern that how can we expand our lifestyle and how can we make a better our lifestyle compared to yesterday. With the help of history, हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि कल जो हुआ था वहाँ पे जो हमने मिस्टेक किया उसको हम नहीं करेंगे, वो कल जो गलती हुई थी उसको हम नहीं करेंगे। ये क्या है, ये बेटर लाइफ है। अभी nowadays you can say the COVID-19 pandemic, में हमने क्या किया, एक नई लाइफ स्टाइल को हमने सीख लिया है कि कैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे और सारी चीज़ें हैं कि बाहर कम से कम निकलना है। पहले खूब घूमते थे, आज 1 साल या 2 साल से हम घरों में बंद हैं या निकलते भी हैं तो किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड के लिए हम बाहर निकलते हैं और बाहर से आने के बाद भी ढेर तरीके का प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें एक लाइफस्टाइल हमारा चेंज कर दिया। हम इससे सीख गए कि हम अपने लाइफस्टाइल को या हम अपने जो डेली की हैबिट है उसको कैसे कोविड-19 के साथ बेटर बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टू नो अबाउट द किंग्स, to know about kings and common people
people of past, you can say past के with the help of history we can know about our past kings and the past common peoples, how can they lifestyle they have, occupation they have, costume they have, etc. Next one is to develop important skill. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, in this pandemic we have developed a skill inside us to maintaining the social distancing, hand wash time to time, sanitize our hand and body, etc. Next one is evolution of language. This is the very important topic which is we will learn in a history, that is the evolution of language. Evolution of language, you can say it's in another way, development phase of language. How the Hindi and how the English and how the other language comes to know us. This is the known as the evolution of language or development phase of language. Means कैसे वो डेवलप होते होते हमारे पास आज इतने डेवलपमेंट फॉर्म में वो लैंग्वेज आया है. यही क्या है, हमारा इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है. अचानक से आज जो हम भाषा बोल रहे हैं वो इंग्लिश हो आपका या हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, हाँ आसामीज हो या कोई भी भाषा हो, वो अचानक से इतने एडवांस फॉर्मेट या डेवलप्ड फॉर्मेट में नहीं आ गया. उसको एक टाइम लगा धीरे 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 डेवलप होने में. आप देखते हैं कि हर टाइम टू टाइम हमारे लैंग्वेज में कुछ चेंज आता है या हमारे डिक्शनरी में कुछ नए वर्ड ऐड होते जाते हैं. दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, या उसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फेज ऑफ द लैंग्वेज, कि हमारा लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ. नेक्स्ट इन द लास्ट वन इज द एडवेंचर. Adventures means to know about a new things with the new experience is known as the adventure. आप आज भी किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उस तरीके के बारे में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है. जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हैं आप, रेगिस्तान में जाएं, ठीक है, ये आपके लिए एडवेंचर होता है. आप उस एडवेंचर के साथ वहाँ के लाइफ स्टाइल को भी देखते हैं, वहाँ के ऑक्यूपेशन को भी देखते हैं, कॉस्ट्यूम को भी देखते हैं. तो अबाउट हिस्ट्री वी एडवेंचर द थिंग्स एंड प्लेस. नाउ द चैप्टर फर्स्ट इज completed. So dear students, the homework is with the completing this chapter, do your self assessment questions by yourself. आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कराए नहीं जाएंगे. सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे. आपको कराया जाएगा सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कराया जाएगा मीन्स उस पर हम डिस्कस करेंगे. सिर्फ मैं क्वेश्चन इलेबोरेट कर दूंगा, आपको उसके भी आंसर अपने बुक से या अपने लैंग्वेज में खुद लिखना होगा. सो
सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, जो आपकी बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है। पिक्चर स्टडी भी आप खुद कर लेंगे। इस पूरे एंटायर चैप्टर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में मैसेज के थ्रू आप अपने पॉइंट्स, अपने डाउट्स को सेंड करिए। नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट पे हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू योर सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।